Hello and welcome. Welcome to the third learning session of chapter number 7 of Science 2, which is Introduction to Microbiology. Okay, so far, what all have we seen? We have seen applied microbiology, which is a branch of biology which studies enzymes. And what are enzymes? Enzymes are chemical substances produced inside living organisms. Okay, so the branch of biology which is going to study enzymes is called as applied microbiology. Industrial microbiology is going to study how microorganisms can be used in production of products. Okay, for example, food products. We had seen dairy products, for example, how is curd, which is yogurt produced, how is butter produced, how is cheese produced, right? Then we had seen probiotics. What are probiotics? Pro means good, biotics means living things. So probiotics are going to make useful bacteria which are present in our intestines active again. Okay, there are some useful bacteria in our intestines. Once they become more active because of probiotics, we will have better digestion of food, right? So that is probiotics. Then we had seen production of bread. How do you produce bread? You take flour of cereals, then you add baker's yeast to it, right? You add baker's yeast, which has Saccharomyces cerevisiae. Okay, so when you mix both of them, fermentation is going to take place. So carbohydrates are going to get fermented, and the sugar is going to be converted into carbon dioxide, right? And because of the production of carbon dioxide, the dough of the bread is going to rise. Okay, so this is how it is going to look like. Okay, this is how it is going to look like. Why is this happening? Why is the dough rising? Because carbon dioxide is being produced in one of the steps of fermentation, and because of that release of carbon dioxide, its size is going to increase and it is going to rise. Okay, then we had seen vinegar production, and we had seen production of beverages. Production of beverages is not in your syllabus for this year. Okay, just keep that in mind. You need not by heart anything from that topic. Okay, so these are the topics we want to cover today: microbial enzymes, antibiotics, fuels, and we'll see biofuel in detail today. Okay, these are the new words we're going to learn today: photoreduction, harvest, threshing. Photoreduction, harvest, and threshing. Okay, our objective for today will be students will be able to explain the use of microbes or microorganisms in microbial enzymes, antibiotics, fuels, and in biofuel. Okay, so there are some can you tell type of questions on page number 80. Which functions are performed by enzymes secreted in human digestive system? जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कोई भी एंजाइम्स सीक्रेट हो रहे यानी रिलीज हो रहे हैं, उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या काम है, that you have to tell in the first answer, and then you have to give names of a few enzymes in the second answer. So human digestive system you all have studied so many times in your previous classes, right? Many previous classes you all must have studied about the human digestive system and various enzymes released during digestion, right? So just take 5 seconds to pause the video and try to think, can you remember any of those? Can you remember a few enzymes, few chemicals from our human digestive system that you have already learned in your previous classes? Okay, I'll wait for 5 seconds for you to pause the video and do the thinking. Okay, I hope you pause the video and have come at least with 2-3 names of enzymes and what is their function. Okay, so the answer to the first question is enzymes secreted in human digestive system break down the complex food substances into simple and soluble molecules. Okay, जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, काफी बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, काफी बड़े बड़े सब्सटेंसेस होंगे. ओके, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा. ओके, उसको तोड़ देगा छोटे और सिंपल सब्सटेंसेस में. एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, सॉल्युबल यानी जो पानी में मिक्स होता है, एंड वंस इट इज मिक्सेबल, इजीली मिक्स हो गया तो उसको एब्जॉर्ब करना भी इजी हो जाएगा. ओके, सो दैट्स द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, next, what are the few names of enzymes? So these are a few names of enzymes. Okay, salivary amylase, pepsin, lipase, pancreatic amylase, sucrase, lactase, maltase. These are all examples of enzymes found in our digestive system. Okay, and they've also given the function. Okay, salivary amylase present in our mouth, right? Whenever you eat, the first enzyme which is going to work on our food is salivary amylase. So उसका काम क्या है, जो कुछ भी स्टार्च होगा उसको माल्टोज में कन्वर्ट करेंगे. And that is why when you eat bhakri and you chew it for a long time, it will start going to taste sweet. Why? Because the starch in that bhakri is being converted into maltose, right? So there are so many
functions given here. I'm not going to go into the details of all of them, but do read all of them and at least remember 2 to 3 of them. Remember at least 2 to 3 names of enzymes. Remember at least 2 to 3 functions or other जो कोई भी enzymes तुम याद कर रहे हो, remember its function also. Okay. So what are microbial enzymes? So nowadays, instead of chemical catalysts, what is catalysts? Catalyst we had seen in Science 1, Chapter 3. Chapter 3, right? I think it's Chapter 3. Chemical reactions and equations. So what is the meaning of catalyst? It is a substance which is not going to take part in the chemical reaction. Chemical reaction में part नहीं लेगा. But what it is going to affect is the speed of the reaction, rate of the reaction. तो reaction fast हो रहा है या slow हो रहा है, वो उसको चेंज कर सकता है. ओके, व्हाट? कैटलिस्ट. तो इंस्टेड ऑफ कैटलिस्ट के जगह पे क्या यूज कर रहा है आजकल? माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री. जो कोई भी केमिकल्स बनाने वाली इंडस्ट्री होगी उसमें कैटलिस्ट यूज करते थे रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, फास्ट करने के लिए. और उसके जगह पे आजकल माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज करते हैं. ओके, व्हाट इज माइक्रोबियल एंजाइम्स? माइक्रोबियल, इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? माइक्रोबियल मींस मेड अप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंजाइम्स यानी क्या? केमिकल सब्सटेंसेस मेड inside living organisms. Okay, so microbial enzymes को वो लोग यूज करेंगे chemical industry में instead of catalysts. इसका क्या फायदा होगा? Why are we doing this instead of catalysts? Why are we using microbial enzymes? The reason is these enzymes are active at low temperature, low pH and pressure. Okay, pH मतलब क्या? pH tells you whether it's an acid or a base, right? अगर जितना छोटा नंबर होगा, pH is a scale, right? 1 से लेके 14 तक. सो 1 के जितना पास होगा नंबर उतना वो ज्यादा एसिडिक है. 14 के जितना पास होगा वो नंबर उतना ज्यादा बेसिक है. एंड इफ इट इज एट 7 इट मींस इट्स न्यूट्रल. इट्स नाइदर एसिडिक नॉर इज इट बेसिक. ओके, सो अगर कम पीएच होगा तो भी चलेगा, कम टेम्परेचर होगा तो भी चलेगा, कम प्रेशर होगा तो भी चलेगा. इफ यू रिमेंबर, इवन इन कार्बन कंपाउंड चैप्टर और इन द चैप्टर ऑफ chemical reactions and equations, we have seen that whenever you use catalyst, you have to give lot of heat, right? सो जो एरो होता है केमिकल रिएक्शन का, उसके नीचे हम लोग विल राइट द नेम ऑफ द कैटलिस्ट और उस एरो के ऊपर कितना हीट देना है, 130 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, वो लिखना पड़ता है, राइट? बिकॉज दोस कैटलिस्ट आर गोइंग टू वर्क ओनली व्हेन you have a certain temperature, you have a certain pH level and you have a certain pressure. Okay, but microbial enzymes को इतना प्रॉब्लम नहीं होता. Okay, it can work also at low temperature, low pH and low pressure. इसके वजह से क्या, इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, राइट? उतना हीट नहीं देंगे, उतना एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, तो एनर्जी सेव हो रही है. एंड इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो नॉट नेसेसरी. ओके, सो इफ यू आर मेकिंग एन इंस्ट्रूमेंट जिसको 2000 डिग्री सेल्सियस पे यूज करना पड़ेगा एंड यू आर मेकिंग अनदर इंस्ट्रूमेंट जिसको 100 डिग्री सेल्सियस पे यूज करना पड़ेगा, किसमें ज्यादा कोरोजन होगा? कोरोजन यानी खराब होना. ओके, कोरोजन यानी डैमेज होना. ओके, सो किसमें ज्यादा और किसमें जल्दी डैमेज होगा? जिस इंस्ट्रूमेंट को तुम लोग 2000 डिग्री सेल्सियस पे यूज कर रहे हो, राइट? क्योंकि उसमें हीट ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो बिकॉज ऑफ दैट वो काफी इजीली डैमेज हो जाएगा. जैसे अगर तुम कम टेम्परेचर पे काम कर रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हो, तो इतना इजीली और इतना जल्दी डैमेज नहीं होगा. ओके, सो कोरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स भी जरूरी नहीं होते हैं इन केस ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स. नेक्स्ट, enzymes carry out specific processes, hence unnecessary byproducts are not formed. Okay, so enzymes सिर्फ एक ही स्पेसिफिक कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो करेगा या फिर प्रोसेस कैरी आउट करेगा. ओके, इसलिए अननेसेसरी बाई प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे. ओके, जब तुम कैटलिस्ट यूज करोगे तो बहुत सारे अलग अलग जो तुम्हें नहीं चाहिए वो भी रिएक्शन में मिल जाता है, राइट? यू हैव सीन, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स द प्रोडक्ट्स ऑफ अ रिएक्शन आर विल बी 2 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स. तो बहुत बार जो चीज नहीं चाहिए वो भी प्रोड्यूस हो जाती है, फिर उसको निकालना पड़ता है, राइट? बट यहाँ पे माइक्रोबियल एंजाइम्स में ऐसा नहीं होता. स्पेसिफिक एक ही प्रोसेस कैरी आउट करेगा, उसलिए कोई अननेसेसरी बाई प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे. जो नहीं चाहिए प्रोडक्ट्स वो नहीं मिलेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंसेस ऑन प्यूरिफिकेशन इज आर मिनिमाइज्ड, राइट? सो अगर समझो जो तुम्हें चीज नहीं चाहिए वो भी प्रोड्यूस होगी तो उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा. प्योर कैसे करोगे? उसको साफ करके. सो उसको अलग से सेपरेट करने के लिए, साफ करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए जो और पैसे लगेंगे वो भी कम हो जाएंगे, राइट? अगर तुम माइक्रोबियल एंजाइम यूज करो. Next, in the case of microbial enzymatic reactions, okay, this is just a fancy word for microbial enzymes के जो reaction हो रहे हैं. Okay, so microbial enzymatic reactions जो होते हैं उनमें elimination and decomposition of waste material is avoided and enzymes can be reused. Okay, so waste material को निकालो, उसको decompose करो, उसका टेंशन नहीं होता because there is no
waste product produced, there are no byproducts produced, right? And enzymes can be reused. एंजाइम्स को तुम बार बार यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बार यूज कर दिया केमिकल रिएक्शन में तो तुम्हें और नया एंजाइम यूज करना पड़ेगा. सेम एंजाइम को तुम बार बार भी यूज कर सकते हो. हेंस सच एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली. क्यों इको फ्रेंडली है? क्योंकि वेस्ट मटेरियल नहीं है, राइट? वेस्ट मटेरियल नहीं है और एंजाइम्स को बार बार यूज कर सकते हो, तो एनवायरमेंट के लिए अच्छा है. सो इट इज इको फ्रेंडली. एनवायरमेंट फ्रेंडली को इको फ्रेंडली बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ओके. Some examples of microbial enzymes are oxidoreductases. So how do you pronounce this? OX is oxy, DO is do, RE is re, DUC is duck, TA is te, SES is cis. Okay, oxidoreductases, transferases, hydrolases, lysases, isomerases, ligases, etc. Okay, I'm going to read all of the microbial enzymes one more time. Oxidoreductases, transferases, hydrolases, lysases, isomerases, ligases, etc. तो एंड में हमेशा एसिस होता है, पर स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ होता है वर्ड का वो हमेशा चेंज होता है. ओके, सो दोज वर माइक्रोबियल एंजाइम्स. Process of dirt removal occurs at low temperature too, due to mixing of enzymes with detergents. Okay, so generally okay, what we do is, अगर हमें हमारे कपड़े धोने होंगे, okay, कपड़े धोने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कपड़े धोने से पहले we keep it in warm water and detergent for some time. अगर तुम उसको गर्म पानी में गीला करके रख दोगे काफी टाइम के लिए, तो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, वार्म है ना वाटर, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इटसेल्फ बहुत सारा जो डर्ट है वो निकल जाएगा अपने आप. लॉट ऑफ द डर्ट इज रिमूव बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ द वाटर. So generally, whenever in households, if you want to wash any clothes, you will put that in warm water first for some time with the detergent. तो अपने आप काफी डर्ट निकल जाता है. So कपड़े धोते समय ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? बट अगर डिटर्जेंट्स में एंजाइम्स मिक्स कर दिए तो लो टेम्परेचर पे होगा. ओके, सो पहले जो डर्ट को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लगता था, अगर डिटर्जेंट में तुम एंजाइम्स यूज कर दोगे तो हाई टेम्परेचर के बजाय लो टेम्परेचर पे ही वो डर्ट रिमूव हो जाएगा. ओके, वो गंदगी निकल जाएगी. Next, glucose and fructose syrup can be obtained from corn flour by action of enzymes obtained from Bacilli and Streptomyces. Okay, Bacilli and Streptomyces ये microbial enzymes है जिससे corn flour, okay, corn तुम्हें पता है, right? मक्का, and flour is आटा. corn flour में से तुम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज निकाल सकते हो. ये दोनों स्वीट टेस्ट के होंगे. ओके, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स में फ्रुक्टोज ग्लूकोज को यूज करते हैं. ओके, next, and the last point, microbial enzymes are used in various industries like cheese, plant extracts, textile, leather, paper, etc. इन सारे इंडस्ट्रीज में microbial enzymes को use करते हैं. Okay, so that was about microbial enzymes. So there's a use your brain power type of question. Food materials like cold drinks, ice creams, cakes, juices are available in various colors and flavors. Whether these colors and flavors are really derived from fruits, जो कुछ भी कलर्स और फ्रूट फ्लेवर्स होते हैं वो सच्चे फ्रूट से आते हैं कि नहीं आते हैं. You all know the answer. I hope you know the answer. It's most of you all, I think, already should know this answer, and most of us already do talk about it. Okay, so the answer is no. Different colors and flavors of cold drinks, ice cream, cakes, and juices are not always obtained from real fruits. कभी कभी हो सकता है, बट जनरली असली फ्रूट में से वो जो अलग अलग कलर्स और फ्लेवर्स नहीं आते. ओके, आर्टिफिशियल कलर्स एंड फ्लेवर्स दैट आर प्रोड्यूस सिंथेटिकली यानी मैन मेड. जो मैन मेड होता है उसको सिंथेटिकली बोलते हैं. सिंथेटिक का ऑपोजिट होता है नेचुरल, जो नेचर में मिलता है. फ्रूट्स नेचर में मिलते हैं, सो दैट इज नेचुरल. अगर वो नेचर में नहीं मिल रहा है, सो यू विल कॉल इट एज सिंथेटिकली यानी ह्यूमन मेड, मैन मेड. So artificial colors and flavors that are produced synthetically, यानी humans बनाते हैं, they are used in these fruit products. Okay, if you want a proof of that, this is the label of Maaza. Okay, everyone must have drank Maaza at some point of time in their life, right? So this is the label of Maaza. Okay, let's read it out. So it's saying ready to serve food drink, and let us start looking at the ingredients. Okay, water, हमें पता था वाटर तो होगा ही. मैंगो पल्प, मैंगो का फ्लेवर आने के लिए. सो 19.5% शुगर है. एसिडिटी रेगुलेटर है, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए. एंटीऑक्सीडेंट है, वी हैव सीन एंटीऑक्सीडेंट.
वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ऑक्सीडाइज ना हो जाए, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव नहीं, लंबे समय के लिए यूजेबल होना चाहिए, उसके लिए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। कंटेन्स परमिटेड जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, परमिशन दिया है जिसका। सिंथेटिक फूड कलर, देखो सिंथेटिक फूड कलर लिखा है यहाँ पे, सिंथेटिक मतलब मैन मेड, और फूड कलर यू ऑल नो, ओके, ये सब कोड्स होते हैं कौन सा कलर यूज किया उसके लिए। एडेड मैंगो फ्लेवर्स, तो अभी जो मैंगो फ्लेवर भी है वो नेचुरल है, यानी जो नेचर में मिलता है, नेचर आइडेंटिकल, नेचर में जैसा मिलता है बहुत उसके सिमिलर। एंड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, तो फ्लेवर भी आर्टिफिशियल डालते हैं वो लोग, ओके। There are two things you need to keep in mind whenever you want to drink something, when you look at the ingredients page. See synthetic food color है कि नहीं, यानी नकली कलर डाला है उसमें, एंड सिंथेटिक फ्लेवरिंग है क्या, सो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग यानी सिंथेटिक फ्लेवरिंग, ओके। सो फ्लेवर भी केमिकल्स की वजह से आ रहा है। सो दैट वाज वन ऑफ द cold drinks that we drink, uska ingredients wala packet. It would be interesting from next time onwards, whenever you drink any cold drink or any juice, just look at the ingredients page कि उसमें कितना artificial color है, कितना artificial flavoring है, वो तुम्हें सब पता चल जाएगा. It's good to know, right? Okay. So this is a list given in your textbook. The list is of organic acids used in various commercial products and microbes useful for the same. कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स कंपनीज यूज करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स यानी जो कंपनीज यूज करते हैं, और उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल होते हैं, दैट दे हैव गिवन इट इन अ टेबल फॉर्म, ओके। सो फॉर एग्जांपल माइक्रोब का नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है ब्रेवी बैक्टीरियम, ओके, ब्रेवी बैक्टीरियम, ओके। उसमें से कौन सा एसिड निकलने वाला है, एल ग्लूटामिक एसिड, ओके, एल ग्लूटामिक एसिड, नॉट ग्लूटामाइक, इट इज ग्लूटामिक, ओके, एल ग्लूटामिक एसिड। सो माइक्रो ब्रेवी बैक्टीरियम में से कौन सा अमीनो एसिड मिलने वाला है, एन ग्लूटामिक एसिड, और उसका यूज क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम glutamate, production of monosodium glutamate we had seen in our last learning session, right? It is Ajinomoto is generally used in our food products. Chinese खाना होगा उसमें Ajinomoto होता है, right? And it has ill effects on our health. but अगर उसको if you want this, you need amino acid L-glutamic acid, जो तुम्हें कौन से माइक्रोब से बनता है, Brevibacterium, or you can also use Corynebacterium. Okay, how do you pronounce this? C-O-R is cor, Y is E, N-O is no, bacterium, Corynebacterium. So Brevibacterium, Corynebacterium में amino acid use होगा, and what is this used for making Ajinomoto. और इसका सोर्स के ये माइक्रोब कहाँ से मिल रहा है, ये मिल रहा है शुगर एंड बीट मोलेसिस और अमोनिया सॉल्ट में से, वहां से ये मिल रहा है, ओके, सोर्स। another important microorganism here is Aspergillus niger. How do you pronounce this? Is other way, or the first way to pronounce this which comes to your mind is Aspergillus, right? And niger, Aspergillus niger, but the correct pronunciation is Aspergillus niger, okay, Aspergillus niger, again an important microbe. So you'll need to read this entire table. Don't leave it till your exam, okay? Right now I would say pause the video and read the entire table. यहाँ पे मेरे फोटो के पीछे आइटाकोनिक एसिड है, बाकी तुम्हें पूरा टेबल दिख रहा है. Just now pause the video here itself and read through the entire table and try to by heart as much as you can, okay? जितना by heart कर सकते हो कर लो. I won't say by heart everything, you can at least by heart the first 3, okay? अभी के अभी by heart कर लो, okay? So that was, these are, I mean that this table is telling you different organic acids used in various companies products and which microorganisms are useful for them, okay? Let's move ahead. Xanthan gum, okay, xanthan gum. Also you'll need to pay attention, very close attention to all the diagrams given in your textbook or all the pictures given in your textbook. okay? अगर उनको समझो, एस्परजिलस नाइजर के बारे में कुछ पूछना है तो लोग तुम लोग डायरेक्टली बोलेंगे नहीं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एस्परजिलस नाइजर. व्हाट दे विल डू इज तुम्हें ये फोटो दे देंगे और फिर बोलेंगे कि जिसका भी फोटो उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो. सो यू माइट नो ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू एस्परजिलस नाइजर, बट क्योंकि तुमने टेक्स्टबुक खोल के ये डायग्राम नहीं देखा, ये पिक्चर नहीं देखा, you won't be able to write it and won't get marks for it. So make sure you're opening your textbook and looking at each and every picture and diagram very carefully, okay? So what is xanthan gum, okay? So
It is something that imparts thickness to your favorite ice creams, puddings, chocolates, milkshakes, chocolate drinks, instant soups, etc. तो ये जो कुछ भी फूड आइटम्स है, ओके, आइसक्रीम हो जाए, चॉकलेट हो जाए, मिल्क शेक हो गया, ये काफी थिक होते हैं, राइट, काफी जाड़े होते हैं. सो थिकनेस कहाँ से आ रहा है? वो xanthan गम से आता है. ओके. The gum is obtained by fermentation of starch and molasses. So starch and molasses का fermentation करके हमें ये गम मिलता है. और ये कौन से स्पीशीज से होता है फर्मेंटेशन? Xanthanomos, Xanthomonas. ओके, Xanthomonas स्पीशीज की वजह से ये fermentation is undertaken. Okay, or it is carried out. So also remember xanthan gum. It is variously useful due to properties like solubility in hot and cold water, high density, etc. Okay, वो क्यों इतना यूजफुल है अलग अलग जगहों पे? क्योंकि वो इजीली गर्म पानी में भी मिक्स हो जाता है, इजीली ठंडे पानी में भी मिक्स हो जाता है. अगर हाई डेंसिटी होगा तो भी इजीली मिक्स हो जाता है. तो बहुत अलग अलग केसेस में उसके प्रॉपर्टीज यूजफुल होते हैं. ओके. इट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स यानी जो चीजें, वो चीजें जो कलर दे देती है. ओके. सो व्हाट whichever is the substance which imparts color is known as pigments. So pigments के production में, in the production of fertilizers, weedicides. What is weedicides? It is made up of two words, okay, weed and dicides. Okay. So insecticides का मतलब क्या है? Insects को मारने वाला चीज जो होता है उसको insecticides बोलते हैं. तो weedicides क्या होगा? weed को मारने वाला weedicides. Okay, what are weeds? Whenever, I mean, you must have seen those small plants which come up, right? बहुत से पतले से छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उसको वीड बोलते हैं, जिसको जो जनरली अनवांटेड होते हैं फार्म्स में. ओके. सो उसको वीड बोलते हैं. वीड नहीं आना चाहिए, उसको मार देना चाहिए. वो जो सब्सटेंस होगा उसको हम वीडिसाइड बोलेंगे. टेक्सटाइल पिगमेंट्स यानी टेक्सटाइल मीन समथिंग रिलेटेड टू आवर क्लोथ्स, राइट, एंड पिगमेंट्स मीन समथिंग रिलेटेड टू आवर कलर. सो टेक्सटाइल पिगमेंट्स यानी कपड़ों को जो कलर मिलता है उसको बोलेंगे टेक्सटाइल पिगमेंट. ओके. टूथपेस्ट, हाई क्वालिटी पेपर, एक्सेट्रा. ओके. इन सबके प्रोडक्शन में xanthan गम यूज होता है. ओके. नेक्स्ट, सब्सटेंसेस ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग एंड देयर रोल. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेसिंग की वजह से कौन से सब्सटेंसेस मिलते हैं एंड उनके क्या क्या रोल्स हैं. ओके, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द एंटायर टेबल. यू विल पॉज द वीडियो and go through the entire table. It's very much self-explanatory and try to by heart at least a few of them. Okay. So for example, कौन से substances? Citric, malic and lactic acid. ये सारे और आधे तीनों एसिड माइक्रोबियल प्रोसेसिंग से बनते हैं. उनका रोल क्या है? एसिडिटी प्रोवाइड करना. ओके. देन ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन. ओके. ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन. अगेन ये सब क्या है? सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोसेसिंग से, माइक्रोबियल प्रोसेसिंग से. उसका रोल क्या है? प्रोटीन बाइंडिंग मतलब क्या? बाइंड मतलब बॉन्ड करना, जोड़ना. ओके. सो प्रोटीन को जोड़ने का काम ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन करेंगे. और ये सारे के सारे सब्सटेंसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोसेसिंग से मिलते हैं. लास्ट वन विच आई एक्सप्लेन इज दिस विटामिन सी, विटामिन B12 एंड विटामिन B2. All these are obtained using microorganisms के प्रोसेसिंग से. एंड उसके रोल क्या? एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन से कंबाइन करने नहीं देंगे. एंड दोज आर विटामिन्स व्हिच आर गुड फॉर आवर, not just good but they are necessary for our health, right? So you can read the remaining ones and try to also read their roles and by heart at least a few of them. Okay, we're going to move ahead. Next, what do you mean by antibiotic? Antibiotic का मतलब क्या? We've already seen what is the meaning of antibiotic. Okay, so you should remember by now. I think I had also given you in one of your the word we're going to learn today section. Antibiotics का क्या meaning होता है? Next, which precautions should be taken about their consumption? उसको consume यानी खाने से पहले, फिर खाते समय कौन से precautions, कौन सी सावधानी हमें लेनी चाहिए. Okay. So again, I'm going to give you 5 seconds because we have already studied about it. I'm going to give you 5 seconds for you to pause and just remember and try to write the answer by yourself. Okay. Okay, I hope you pause the video and try to recall the answers. Okay, so the first question, the answer to it will be carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for preventing growth of harmful microorganisms are called antibiotics. Okay, so antibiotics क्या है? Antibiotics carbon compounds है. कहाँ से मिलते हैं?
कुछ बैक्टीरिया एंड फंगस से मिलते हैं, और उसका यूज क्या है, वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे यानी रोकेंगे। ओके, सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रोक देंगे, और उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, मेक श्योर यू आर बाय हार्टिंग दिस डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट और विच प्रिकॉशन शुड बी टेकन अबाउट देयर कंजम्पशन। एंटीबायोटिक्स खाते समय क्या क्या सावधानी लेनी पड़ेगी, व्हाट प्रिकॉशंस विल बी टेक। प्रिकॉशंस मीन सावधानी। ओके, एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ओके, डॉक्टर को पूछे बिना, डॉक्टर ने बोले बिना हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए टू ट्रीट कॉमन डिजीज लाइक थ्रोट इन्फेक्शन, यानी गले में कुछ दर्द हो रहा है या फिर इरिटेशन हो रहा है, कॉमन कोल्ड, खांसी है, सर्दी है, और इन्फ्लुएंजा। ओके, तो अगर ऐसे सिम्टम्स दिखने लग गए तुम्हें, खुद के मन से एंटीबायोटिक्स नहीं लेना। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे सर्दी हुई थी तो डॉक्टर ने ये दवाई दी थी, मुझे इस बार भी वैसी सर्दी हो रही है तो मैं सेम दवाई वापस खुद से ले लूंगा या खुद से ले लूंगी। दैट्स नॉट द करेक्ट वे टू डू दैट। यू शुड ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर। ओके, दे आर स्पेंडिंग 5 years स्टडिंग मेडिसिन, राइट? सो उनको ऑब्वियसली तुम लोग से थोड़ा ज्यादा होगा। इतना ईजी तो नहीं होगा ना, 5 साल में वो लोग ने सिर्फ इतना सिखाया, अच्छा ये गले में दर्द है, गला लाल है तो उसको ये मेडिसिन दे दो, इफ द नोज इज वाटरी उसको वो मेडिसिन दे दो। इतना इजी नहीं होता वो। सो दिस लॉट, इट्स वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड देन दैट, एंड इट्स एडवाइज्ड और इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हमेशा डॉक्टर के पास जाओ, खुद से खुद की दवाई मत दिया करो, स्पेशली एंटीबायोटिक्स। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ एंटीबायोटिक्स। ओके, though we may feel well before completing the prescribed course of antibiotic, we must continue and complete it. Okay, so what happens is many times when we are feeling sick, the doctor is going to give you antibiotics for say 10 days. Okay, so 10 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स दे दिए और 5वें दिन से तुम्हें ठीक फील हो रहा है। ओके, यू आर नॉट फीलिंग एनी सिम्टम्स, तुम्हारा फीवर चला गया है, तुम्हें सर्दी नहीं है, या देयर इज नो बॉडी एक बॉडी पेन नहीं है, एवरीथिंग इज फीलिंग फाइन। सो दैट डज नॉट मीन कि तुम वो एंटीबायोटिक्स वाली दवा लेना बंद कर लो। अगर उसको 10 दिन के लिए लेने बोला, 10 दिन के लिए कंटिन्यू करके खत्म करना। यू शुड नॉट स्टॉप इन बिटवीन कि तुम्हें अभी बेटर फील हो रहा है। ओके, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विथ एंटीबायोटिक्स अगेन। वी शुड नॉट सजेस्ट दी एंटीबायोटिक्स टू अदर्स, दूसरों को सजेस्ट नहीं करना चाहिए, इवन इफ एंटीबायोटिक्स वर यूजफुल फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग को एक बार जुकाम हो गया, फीवर आ गया, तो तुम्हें डॉक्टर ने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करके दे दिया। अगली बार किसी तुम्हारे पहचान के किसी को हो गया, तुम्हारे फ्रेंड को, तुम्हारे फैमिली मेंबर को, सो अगेन यू कैन नॉट से अच्छा मुझे दवा दी थी, मुझे अच्छा फील हुआ था तो तुम भी यही दवा ले लो। सो इट्स नॉट दैट इजी। मेक श्योर यू आर ऑलवेज गोइंग टू अ सर्टिफाइड डॉक्टर, एंड डॉक्टर से तुम्हें डायग्नोस करेगा, तुम्हें चेक करेगा, ऑब्जर्व करेगा, and only then they will give correct medicines. Okay, you have to take that care. But इतना क्यों ध्यान दे रहे हैं हम लोग एंटीबायोटिक्स के बारे में? I mean, अगर समझो बीच में लेना बंद कर दिया मैंने एंटीबायोटिक्स को, या फिर बिना वजह ले ली मैंने, मेरे को कुछ भी हुआ नहीं फिर भी एंटीबायोटिक्स ले रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? I'm not going to answer that question. I wanted to think, not think, even, I mean, first think about it and then search for it. Okay, search for it on the internet. What is the problem with antibiotics? If you just search problem with antibiotics on Google, you should get many good quality answers. Okay, and there's a serious problems with antibiotics. अगर एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर गए, और क्यों काम करना बंद करेंगे, अगेन इफ वी डोंट फॉलो दी स्टेप्स, वो काम करना बंद कर देंगे, नॉट जस्ट फॉर अस, फॉर एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन। एंटीबायोटिक्स काम करना बंद करना, एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर गए, then again we'll have to go back to how we were living 200 years back. You remember मैंने बोला था रे, 200 साल पहले अगर समझो हाथ पे कट आ गया और उस पे इन्फेक्शन हो गया, पूरा का पूरा हाथ काटना पड़ता था, क्योंकि तभी एंटीबायोटिक्स नहीं थे। और अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स को ठीक से यूज नहीं किया, एंड ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस बन गए। ओके, यू कैन आल्सो सर्च दिस ऑन गूगल, ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस। ओके, जो जिसपे दवाई काम नहीं करती है, तो फिर इन्फेक्शन हो गया तो उसको रोकने के लिए कोई दवा नहीं होगी, पूरा पूरा हाथ काटना पड़ेगा। ओके, so make sure you're taking care about these 3 points, especially with antibiotics. Antibiotics के साथ काफी careful होना पड़ता है। Okay, and do go and Google this. Okay, drug resistant diseases, precautions with respect to antibiotics, etc., etc. You'll find very good quality answers and very interesting things there. Okay, let's move ahead. Antibiotics. So many diseases of human and other animals have been controlled due to antibiotics obtained from different types of bacteria and fungi. एंटीबायोटिक्स कहाँ से मिलता है? बैक्टीरिया और फंगस से मिलता है। और बहुत से जो ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स में डिजीज होते हैं उसको एंटीबायोटिक्स से हम लोग कंट्रोल करते हैं। ओके, एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, अगेन आई होप you googled how penicillin was discovered. It's a very interesting story कि penicillin पहली बार कैसे डिस्कवर हुआ था. If you go on Google and you just type
discovery of penicillin, you'll get many different links of very good quality videos made on that. So just search how was penicillin discovered, and because of that discovery जो गलती से हुई थी, आज हम लोग के पास एंटीबायोटिक्स है. अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो पूरा पूरा हाथ या पूरा का पूरा पैर नहीं काटना पड़ता. सर्जरी में इन्फेक्शन हो गया, फिर भी पीपल कम आउट alive of it. Okay, so antibiotics like penicillin, there are many antibiotics. Okay, so monobactam यहाँ पे लिखा है, बैक्टेरियसिन यहाँ पे लिखा है, एरिथ्रोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, tetracyclines hai. So there are many antibiotics they have given. A few important ones I have underlined. Okay, penicillin is important, erythromycin is important. You'll need to remember at least 4 examples. Okay, 4 examples तुम्हें याद होने चाहिए. 4 examples of antibiotics. Next, rifamycin. Okay, rifamycin is effective against tuberculosis. Okay, again for a long time we did not have any cure for tuberculosis. Tuberculosis किसी को हो गया, you know that person was going to die in the next 5 to 10 years. But now, thankfully, luckily, we are very lucky that we have rifamycin, which is one of the antibiotics against tuberculosis. अगर किसी को भी आज tuberculosis हो जाता है, तुम्हें पता है that person not going to die. That person takes his or her medication on time and continuously, as instructed by the doctor. That person is going to live a normal life. Okay, so rifamycin, again, one of the examples of antibiotics you need to remember, which is effective against tuberculosis. Okay, next, again, there's some can you tell type of questions given on page number 82. Okay, so which different materials are decomposed in biogas plant? Biogas plant we have seen in detail in our last grade, or grade 9. Grade 9 में हम लोगों ने biogas plant को detail में पढ़ा था, right? So again you should remember this. So which different materials are decomposed in biogas plant? Biogas plant में कौन से अलग अलग materials हम लोग डालते हैं और उसको decompose करते हैं. Which useful materials are obtained through it? उसको decompose करने के बाद कौन से useful materials मिलते हैं हमें? Which is the fuel out of those? उसमें से fuel क्या है? Okay, and decomposition occurs through which organisms? कौन से organisms की वजह से वो decomposition हो रहा है? Okay, so I'm going to wait for 5 seconds again for you to pause the video here and try to recall कौन से words तुम्हें याद आ रहे हैं. At least try to recall what are the words that you can recall जो तुम्हें याद कर सकते हो with respect to biogas plant that we had studied in grade 9. क्या क्या याद आ रहा है देखो. Okay, okay, I hope you paused the video and you have thought, given it a thought कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या बायोगैस का. अगर याद नहीं आ रहा है then we are going to discuss the answers. Okay, याद आया तो it's a great thing. Okay, so in biogas plant, what's the question? Which different materials are decomposed in biogas plant? Biogas plant में कौन सी चीजें हम लोग डालते हैं जिससे वो decomposition हो जाएगा. So in biogas plant, organic waste from agriculture, organic यानी जो living being से आया. Okay, so organic waste from agriculture. Agriculture में क्या living being होता है? Crop. So, जो कुछ भी क्रॉप है जो यूज नहीं होने वाला, उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो यूज नहीं होने वाले, जो कुछ भी वेस्ट है क्रॉप्स, उसको यूज कर सकते हैं. एनिमल डंग, डंग मतलब क्या? पॉटी. ओके, सो एनिमल का पॉटी. वेट गार्बेज यानी गीला कचरा. ओके, तुम्हारे घर में जो कुछ भी गीला कचरा बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल सब्जी है, सब्जी खराब हो गई है, उसका ग्रेवी है, मिल्क है, जो कुछ भी वेट गार्बेज है तुम्हारे घर पे, वो. एज द थर्ड थिंग, ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी ह्यूमंस का भी पॉटी. Okay, that all of these things can be put in the biogas plant and they are decomposed. Okay, so ऐसा waste materials are, right? Human excreta या फिर animal dung, wet garbage, crop waste, ये सब waste products है. तो waste products को डस्टबिन में डालने से अच्छा उसको बायोगैस प्लांट में डाल दो. बायोगैस प्लांट में डाल के अगर वो डीकम्पोज हो गया तो हमें फ्यूल भी मिलेगा. सो जो वेस्ट है, जो जैसे भी हम लोग जिसको वैसे भी हम लोग फेंक देते हैं बिना सोचे समझे, उसको अगर बायोगैस प्लांट में डालेंगे तो हमें फ्यूल भी मिलेगा उसके बदले, राइट? इट्स अ ग्रेट डील. Okay, next, which useful materials are obtained through it? Which is the fuel out of those? So biogas मिलता है उसमें से and slurry मिलता है. ये दो चीजें मिलती है, biogas and slurry. What is biogas? Biogas is the fuel and slurry. Slurry मतलब क्या? Semi liquid, semi solid. Okay, ना ही liquid जैसा होगा, ना ही liquid जैसा होगा, ना ही solid जैसा होगा. Okay, so कीचड़ जैसा होगा वो. Okay, semi solid और semi liquid, slurry बोलते हैं उसको. ये दो चीजें मिलती है हमें बायोगैस प्लांट से. सो इसमें से बायोगैस जो है वो फ्यूल है, यानी उसको तुम जला के खाना वगैरह पका सकते हो. एंड स्लरी इज यूज्ड एज मेन्योर. ओके, मेन्योर मतलब क्या? इट्स टाइप ऑफ अ फर्टिलाइजर. ओके, सो अगर तुम उसको क्रॉप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे,
क्रॉप्स पर डाल दोगे, सो इट विल गिव न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल एंड इट विल एक्ट एज अ फर्टिलाइजर फॉर द क्रॉप्स. ओके, सो स्लरी को मैन्योर की तरह यूज करेंगे, बायोगैस को फ्यूल की तरह यूज करेंगे. उसको गैस पे लगा के गैस से पाइप से जोड़ दोगे, पाइप से गैस में जोड़ दोगे उस बायोगैस प्लांट को, और उसमें से बायोगैस निकलेगा और उसको तुम जला के खाना पका सकते हो. ओके, नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन अकर्स थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स. कौन से ऑर्गेनिजम्स की वजह से डीकम्पोजिशन होता है? So in biogas plants, if you remember last year when I was teaching this biogas plant, I had just told you कि अच्छा उसको तुम्हें बायोगैस ट्यूब में बायोगैस प्लांट में डालना है. जब बायोगैस प्लांट में डालोगे एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा एंड कुछ बैक्टीरिया उस पे काम करने वाले हैं. सो नाउ दैट वी हैव रीच्ड इन 10th स्टैंडर्ड एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड स्टडीइंग माइक्रोबायोलॉजी. नाउ वी कैन सी अच्छा वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली करते क्या है, डीकम्पोज करना है, नहीं क्या होता है, इट इज ब्रेक डाउन ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस. और जो ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है उसमें फिर मीथेन गैस निकलती है. So now we can start making connections to whatever we had studied in grade 9. grade 9 में बस इतना समझा था कि अच्छा कुछ ना कोई बैक्टीरिया जो है उसको ब्रेक डाउन करने वाला है. अभी कौन से बैक्टीरिया है ये हम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, सो सेल्यूलोमोनस, क्लॉस्ट्रीडियम हमने ऑलरेडी पढ़ा था. जस्ट थिंक, कैन यू रिमेंबर क्लॉस्ट्रीडियम हमने ये वर्ड कहाँ पे पढ़ा था? समवेयर वी हैड स्टडीड क्लॉस्ट्रीडियम. देन स्यूडोमोनस, स्यूडो ये वर्ड वापस आ गया. स्यूडो में पी साइलेंट होता है. ओके, तो स्यूडो नहीं बोलना, स्यूडो बोलना, पी साइलेंट. स्यूडोमोनस एंड मीथेनोजेंस लाइक मीथेनोबैक्टीरियम. ओके, मीथेनोजेंस लाइक मीथेनोबैक्टीरियम. मीथेनोजेंस मतलब जिससे मीथेन गैस निकलने वाला. ओके, सो ये सारे ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोजिशन में डीकम्पोजिशन कैरी आउट करेंगे. ओके, so that's your answer to the third question. So let us start looking at microbes and fuels. So there are three types of fuels. Okay, तीन टाइप के fuels है. fuels यानी कि जिसको हम यूज करके एनर्जी निकाल सकते हैं. Again, this is an example of Saccharomyces, which is also yeast. Okay, ये हम लोग ने ब्रेड के प्रोडक्शन में देखा है, और भी काफी सारे प्रोडक्शन में हम लोग ने देखा Saccharomyces. Again, make sure you're opening your textbook and also looking at these pictures, looking at these diagrams very carefully. अगर वो लोग तुम्हें yeast पे if they ask for 1 mark, what are the uses of yeast, तुम्हें आंसर पता होगा, but instead of asking what are the uses of yeast, they can just give you this picture given in the textbook and ask you what is the use of this product shown in the what is the use of the substance shown in the photo, or what is the use of the living organism shown in the photo. You should be able to make that connection. अच्छा ये जो photo है वो yeast क्या है या फिर Saccharomyces क्या है, only then you will be able to answer them correctly. Okay, so what I was saying was there are three types of fuels, right? So first है gaseous fuel. Gaseous fuel गैस के फॉर्म में. So methane हमें मिलता है माइक्रोबियल एनारोबिक डीकम्पोजिशन से. एनारोबिक यानी एक किसका ऑपोजिट है? एरोबिक का ऑपोजिट है. एरोबिक यानी प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एयर में ऑक्सीजन होता है, राइट? सो एरोबिक यानी प्रेजेंस ऑफ एयर, विच ऑल्सो मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एयर में होता है. एरोबिक का ऑपोजिट होता है एनएरोबिक. ओके, एरोबिक की वर्ड का ऑपोजिट होता है एनएरोबिक, यानी नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर के सामने या फिर एयर के प्रेजेंस में नहीं होगा. एयर के प्रेजेंस में नहीं होगा यानी इतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. ओके, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता. सो मीथेन कैन बी ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल एनारोबिक डीकम्पोजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. ओके, अर्बन यानी सिटीज में जो कुछ भी एग्रीकल्चर का वेस्ट है या फिर इंडस्ट्री का वेस्ट है, उसको उसका एनारोबिक डीकम्पोजिशन यानी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर अगर उसका डीकम्पोजिशन किया तो मीथेन गैस मिल सकता है. दैट्स योर फर्स्ट टाइप ऑफ फ्यूल. सेकेंड टाइप, इथेनॉल. इथेनॉल इज अ क्लीन फ्यूल. क्लीन क्यों बोल रहे हैं इसको? क्लीन यानी साफ है, ये दूसरे फ्यूल गंदे होते हैं. क्लीन इसलिए बोला क्योंकि उसमें स्मोक नहीं होता. ओके, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन रूरल इंडिया राइट नाउ इज कि दे आर यूजिंग वुड, और वुड को जब जला के वो लोग खाना पकाते हैं उसमें बहुत धुआं निकलता है. दैट धुआं एक बार दो बार अगर तुम लोग ने इनहेल कर लिया, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ यू इनहेलिंग दैट स्मोक एवरी डे, ट्वाइस अ डे, दो बार दिन में तुम वो स्मोक को इनहेल कर रहे हो, यू कैन हैव सम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. ओके, सो इथेनॉल की क्या खासियत है? इथेनॉल इज एन अल्कोहल. वी हैव स्टडीड दिस इन आवर कार्बन कंपाउंड्स वाला चैप्टर, राइट? सो इथेनॉल इज एन अल्कोहल विच इज क्लीन. क्लीन क्यों बोला? जिसमें स्मोक नहीं निकलता. एक क्लीन फ्यूल है विच इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस. Okay, what is fermentation? Chemical breakdown of molasses by the yeast Saccharomyces. That's why they've given the example or the photo of Saccharomyces. Okay, halogen gas is considered to be the fuel of future. Okay, so
अभी हम लोग मोस्टली डीजल एंड पेट्रोल कार्स यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं, एंड फ्यूचर में हाइड्रोजन को, फ्यूचर का जो फ्यूल होगा या फ्यूचर की जो गाड़ी होगी वो हाइड्रोजन गाड़ी होगी. व्हाई एम आई सेइंग हाइड्रोजन की गाड़ी, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हाइड्रोजन? इलेक्ट्रिक कार में भी मजा आ रहा है, राइट? इलेक्ट्रिक कार में भी काफी इको फ्रेंडली बना सकते हो. सो इको फ्रेंडली कार का क्या, सॉरी इको फ्रेंडली नहीं, इलेक्ट्रिक कार का क्या प्रॉब्लम है पता है क्या? इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में बहुत समय लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल आवर मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो बैटरी, वर्क ऑन बैटरी, राइट? सो उनको चार्ज करने में कितना समय लगता है? 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है. सिमिलरली पूरा का पूरा गाड़ी होगा, गाड़ी को चार्ज करना, सो अगेन यू गोइंग टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, 1 आवर 2 आवर यू हैव टू स्पेंड टाइम. वेयर हाइड्रोजन फ्यूल, बस अंदर हाइड्रोजन का जो पाइप है डाल दो, 1-2 मिनट में पूरा का पूरा टैंक फुल हो जाएगा, right? So that is one important advantage which hydrogen gas has as fuel over electric cars. Okay, again very interesting topics to again further search on, further watch videos on YouTube. Okay, hydrogen cars, electric cars. Okay, so hydrogen gas को fuel of the future बोलते हैं. Hydrogen gas is released during biophotolysis. Okay, biophotolysis of water. Biophotolysis of water में क्या होता है? Bacteria perform photoreduction. What is photoreduction? Photo means in the presence of light. Reduction means you all know. Reduction मतलब क्या? Reduction मतलब ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट. ऑक्सीडेशन यानी कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन. तो रिडक्शन का क्या मतलब होगा? कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन या फिर रिलीजिंग योर ऑक्सीजन. ओके, और इट कुड ऑल्सो मीन गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये सारे डेफिनेशन है रिडक्शन की. ओके, कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन और रिलीजिंग ऑक्सीजन और एक्सेप्टिंग अ फ्यू इलेक्ट्रॉन, ये सारे डेफिनेशंस है रिडक्शन के. सो लाइट के प्रेजेंस में तीनों में से कोई भी चीज हो गई तो उसको फोटो रिडक्शन बोलेंगे, और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है. दैट इज कॉल्ड एज बायोफोटोलिसिस. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट, सिमिलर टू फ्यूल्स, वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर आल्सो प्रोड्यूस थ्रू माइक्रोबियल प्रोसेस. बहुत सारे इंडस्ट्री के केमिकल्स भी माइक्रोबियल प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं वो लोग आजकल. एग्जाम्पल, वेरियस अल्कोहल्स, एसीटोन, organic acids, fatty acids, polysaccharides are that are useful as raw materials in chemical industry. ये सब alcohols, acetones, polysaccharides इसको raw materials यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में. यानी जो केमिकल इंडस्ट्री में जो चीजें एंड प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए ये चीजें लगती है, उनको रॉ मटेरियल्स बोलते हैं. ओके, सो ये सब रॉ मटेरियल्स जो इंडस्ट्री में बनते हो माइक्रोबियल प्रोसेस से बनते हैं. एंड सम ऑफ दीज आर यूजफुल एज रॉ मटेरियल्स फॉर प्लास्टिक एंड फूड प्रोडक्ट्स. प्लास्टिक और फूड प्रोडक्ट्स बनाने होंगे तभी भी इनमें से कुछ कुछ चीजें यूजफुल होते हैं एज रॉ मटेरियल्स. ओके, नेक्स्ट लेट अस लुक एट बायोफ्यूल इन डिटेल. वी हैव सीन फ्यूल्स कैसे बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. नाउ वी लुक एट बायोफ्यूल. ओके, सो बायोफ्यूल इज इंपॉर्टेंट अमंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी. ओके, व्हाट इज रिन्यूएबल सोर्स? रिन्यूएबल सोर्स यानी वो इजीली अवेलेबल है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है. ओके, फॉर एग्जांपल कोल. इज कोल रिन्यूएबल? इट इज नॉट रिन्यूएबल. व्हाई? बिकॉज वो इजीली अवेलेबल नहीं है, उसके लिए तुम्हें माइनिंग करनी पड़ेगी. एंड वो प्लेंटी इट्स नॉट अवेलेबल इन प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी. ओके, उसका लिमिटेड सप्लाई. अगर पूरा का पूरा कोल हम लोगों ने यूज कर लिया अर्थ का, तो इट इज गोइंग टू टेक टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर कोल टू अगेन फॉर्म इन आवर अर्थ सरफेस, राइट? सो उतना ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं है. सो कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. बायोफ्यूल इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्योंकि इजीली अवेलेबल है एंड काफी क्वांटिटी में भी अवेलेबल है. सो दीज आर रिलायबल फ्यूल्स ऑफ फ्यूचर. फ्यूचर के लिए काफी हम लोग भरोसा कर सकते हैं इन फ्यूल्स पे, अगर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया तो या फिर कोल खत्म हो गया तो. सो ये जो फ्यूल्स है बायोफ्यूल्स, दे आर अवेलेबल इन सॉलिड. फॉर एग्जांपल कोल, डंग, क्रॉप रेसिड्यू यानी क्रॉप्स जो बच जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, वेजिटेबल ऑयल और अल्कोहल के फॉर्म में, एंड गैसियस स्टेट में भी अवेलेबल है, गोबर गैस फॉर एग्जांपल, कोल गैस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अलग अलग फॉर्म्स में ये फ्यूल्स अवेलेबल हो सकते हैं. ओके, so this is a schematic diagram of biofuel production. So they have not explained this in the textbook, so when I'm explaining it, please make sure you're focusing completely and concentrating completely on whatever I am explaining. Okay, so it all starts from the trees. Okay, it's biofuel, right? Bio matlab living. So living organism से ही वो कुछ ना कुछ निकलने वाला. ये जो fuel है वो living organism से मिलने वाला. So it all starts with trees. Trees are living organisms, right? So trees, what are the trees or plants going to do? They're going to take solar energy and take carbon dioxide and undergo photosynthesis, right? They perform photosynthesis. So photosynthesis में क्या होता है? Solar energy को ले लेंगे
एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे और उससे अपना खुद का फूड बनाएंगे, खुद का एनर्जी बनाएंगे. देन यू विल हार्वेस्ट दैट एनर्जी. ओके, इसको बोला हार्वेस्टिंग. हार्वेस्ट दैट एनर्जी, हार्वेस्ट करना यानी कलेक्ट करना. ओके, हार्वेस्ट करना यानी कलेक्ट करना. तो जो कुछ भी है उसको कलेक्ट कर लिया ट्रीज को. देन इट विल गो अंडरगो थ्रेशिंग. थ्रेशिंग यानी सेपरेट करना. ओके, थ्रेशिंग मतलब सेपरेट करना. क्या सेपरेट करोगे? सेल्यूलोज. तो ये जो ट्रीज के अंदर सेल्यूलोज था, सेल्यूलोज कैसे बना है? सोलर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके बना था इन द ट्रीज. तो ट्रीज हैव बीन हार्वेस्टेड यानी सेपरेट, सॉरी कलेक्ट कर लिया है. तो थ्रेशिंग किया, थ्रेशिंग किया यानी सेपरेट किया. किसको सेपरेट किया? सेल्यूलोज को सेपरेट किया. देन इन द फैक्ट्री और इन द इंडस्ट्री that cellulose is going to be converted in glucose. Cellulose को glucose में convert करोगे. And what is glucose? Glucose is nothing but sugar, right? Glucose मतलब sugar. तो ये जो लिक्विड फ्यूल है वो प्रोड्यूस होगा फर्मेंटेशन से. तो ये जो शुगर मिला है, ग्लूकोज मिला है, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको फर्मेंट करेंगे. फर्मेंटेशन इज केमिकल ब्रेकडाउन. सो इस शुगर को केमिकली ब्रेक डाउन करेंगे, फर्मेंट करेंगे और उससे लिक्विड फ्यूल बन जाएगा. वो जो लिक्विड फ्यूल है वो ही तुम्हारा बायोफ्यूल है. ओके, एंड दैट बायोफ्यूल विल देन बी यूज्ड इन एरोप्लेन्स, इन कार्स, इन ट्रक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. And when aeroplanes, trucks, and cars use those biofuels, they are again going to release carbon dioxide. That carbon dioxide again will go in your air, and the trees are going to use it along with the solar energy to make new biofuel or new or more amount of fuel. Okay, so इसको क्या बोलते हैं? बायोमास बोलते हैं. ओके, ये जो लिविंग थिंग है उसमें से तुम्हें सब एनर्जी मिल रही है, बायोफ्यूल मिल रहा है, इसलिए उसको बायोमास बोलेंगे. And the cycle will continue. Okay, so that's your explanation of the schematic diagram. What I would ask you to do is try to write it down in your own words in your notebooks. Okay, अगर तुम अभी के अभी नोटबुक्स में अपने खुद के वर्ड्स में लिख दोगे, देन जस्ट बिफोर द एग्जाम यू डोंट हैव टू वॉच दिस वीडियो अगेन. अगर तुम लोग भूल गए कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया था, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होगा, राइट? सो जस्ट मेक श्योर मेकिंग योर ओन समरी, खुद के ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो अगर तुम्हें समझ में आ चुका है तो. सो दैट एग्जाम के जस्ट पहले अगर तुम भूल गए तो तुम उसको पढ़ के रिवाइज कर सकते हो. यू डोंट हैव टू वॉच द एंटायर वीडियो अगेन. ओके, cool. So that was biofuel production. So that's it. Just check whether you have accomplished today's learning objective or not. Can you explain me the use of various microorganisms in microbial enzymes, in antibiotics, in fuels, and in biofuel? If your answer is yes, then you have accomplished today's learning objective. Okay, and there are so many different and difficult microorganisms names that you have to remember. Okay, there's no other way around it. You have to remember, you have to memorize those names of microorganisms for your objective type of questions. Okay, and again, the spelling should also be correct. So maybe try to write the spellings 10 times in your notebooks, and that might help a few of you all. But you all have to by heart all the names of the important microorganisms and वो कहाँ पे use होते हैं और उनका क्या क्या function है. We have seen also many tables today in our learning session. You have to remember at least 3-4 examples from each table. Okay, and if possible by heart the entire table. If it's not possible, at least 2-3 examples by heart कर लो. Okay, these are the new words we learned today. Photo reduction, reaction we've already studied, right? So photo reduction मतलब क्या? Reduction reaction in the presence of light, because of light या फिर presence of light. Harvest यानी gather करना या फिर जमा करना. Okay, and threshing मतलब separating. वो ग्लूकोज जो होता है उसको बायोमास में से सेपरेट कर लेते हैं. Okay, these are the new words we learned today. And that's it for this learning session. I hope you enjoyed and I hope you had fun. And I also hope you understood everything that I taught today. Okay, till then, we'll see each other in the next one. Until then, bye and peace.